السلام علیکم معزز سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو میری آج کی کہانی کا عنوان وفا پر ناز ہے۔ چلیے بلا تاخیر کی اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ 10ویں کلاس کے پہلے دن سب سے آخر میں آنے والے طلبہ نے میری توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ پرکشش کتابی چہرے اور بڑی بڑی بے قرار آنکھوں والی اس لڑکی میں جانے کیا بات تھی کہ نظر اس کے چہرے سے ہٹتی نہ تھی۔ اتفاق سے میرے برابر والی سیٹ خالی تھی۔ ٹیچر ابھی نہیں آئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور میرے پاس خالی جگہ دیکھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے رسان سے اپنی کتابیں سامنے رکھ دی۔ سب سے اوپر اس کی ڈائری تھی جس پر اس کا نام واضح طور پر درج تھا، ثمینہ خان۔ مجھے مخاطب کرنے کی خاطر اس نے نام پوچھنے کی زحمت نہ کرنی پڑی تھی۔ میں نے کہا، خوش آمدید ثمینہ، آج کلاس میں ہمارا پہلا دن ہے اور تم مجھے بہت اچھی ہم نشست مل گئی ہو۔ شکریہ، اس نے قدرے خوش اخلاقی سے مسکرا کر جواب دیا۔ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، اور میں ہوں فاخرہ فخر۔ اوہ، اچھا نام ہے، یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے ہاتھ ملایا۔ اس کا ہاتھ نرم ملائم تھا، جیسے کبھی گھریلو کام کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ ثمینہ کی باتیں بڑی دلچسپ ہوتی تھیں، جنہیں سن کر انسان اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ تاہم کبھی بھی وہ مجھ سے ایسی باتیں کہہ جاتی تھی کہ میں پریشان ہو جاتی تھی۔ مثلاً وہ کہتی، ہم لڑکیوں کو بھی اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے۔ پابندی زندگی میں گھٹن بھر دیتی ہے اور باصلاحیت لوگ اس قسم کی گھٹن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس گھٹن کو برداشت کرنے سے تو مر جانا بہتر ہے۔ وہ یہ بات اس قدرے شد و مد سے کہتی کہ میں ڈر جاتی۔ مجھے اندازہ ہو چلا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ موجود ہے جس کی وجہ سے وہ بے چین رہتی ہے اور گھٹن محسوس کرتی ہے۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، آخر کیوں ایسی باتیں کرتی ہو؟ بولی، اداکاری کا شوق ہے۔ جانتی ہوں کہ گھر سے اجازت ملے گی اور نہ میں اپنا یہ شوق پورا کر سکوں گی۔ میرا تعلق ایک قدامت پسند گھرانے سے ہے، جہاں گھر کا ماحول گھٹا ہوا ہے۔ والد تو رسالے تک پڑھنے نہیں دیتے۔ یہ تو والدہ کی ہمت ہے کہ ہم بہنوں کو اسکول میں داخلہ دلوایا۔ دیکھو، جہاں لڑکیوں کے پڑھنے پر پابندی ہو، ظاہر ہے وہاں کا ماحول کیسا ہوگا۔ کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ ثمینہ چپ چپ رہنے لگی ہے۔ وہ اب زیادہ بات نہ کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، ثمینہ تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ میرے سوال کے جواب میں بولی، مجھے حکم ملا ہے کہ پڑھائی کا سلسلہ منقطع کر دوں، کیونکہ ابا میری شادی کی تاریخ رکھ رہے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ ہے ایک میرے چچا کا بیٹا۔ نام وجاہت ہے، مگر شکل بالکل احمقوں والی۔ شکل و صورت میں کیا رکھا ہے؟ بندہ ٹھیک ہونا چاہیے، میں نے کہا۔ شکل وجہ ہے کہ نہیں، مگر مجھے نفرت ہے اس سے۔ نفرت کی وجہ؟ کیونکہ کسی سے نفرت کرنے کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ مجھے وجہ نہیں معلوم، وجہ کوئی نہیں ہے، بس وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کی صورت بات ہی نہیں، وہ بہت سیدھا سادہ ہے۔ کیا سیدھا سادہ ہونے میں کچھ برائی ہے؟ وہ بولی، نہیں، برائی کوئی نہیں، بس بلا وجہ برا لگتا ہے۔ اپنے اپنے دل کی بات ہوتی ہے، دل کو نہ بھائے تو میں کیا کروں؟ عجیب منطق ہے تمہاری۔ دراصل تم ابھی شادی کرنے کے موڈ میں نہیں ہو، اور تمہارے ابا کی ہیں 5 بیٹیاں، جنہیں اپنے فرائض سے فارغ ہونے کی جلدی ہے۔ جو بھی ہے، میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ وجاہت سے تو ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ کوئی اور پسند ہے تمہیں؟ کوئی پسند نہیں، پہلے کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہوں، شادی تو کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے دلائل کے آگے خاموش ہو رہی۔ اگلے روز سکول آئی تو کافی پریشان تھی، کیونکہ اس کے والد اس کی شادی کے معاملے میں بہت سنجیدہ تھے۔ کہنے لگی، جی چاہتا ہے کسی کو تلاش کر کے پسند کر لوں اور اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں، تاکہ اس الو کی شکل کے وجاہت سے نجات مل جائے۔ میں نے کافی سمجھایا، دیکھو ثمینہ، تمہارے والدین جو بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اگلے روز 3 دن کی چھٹیاں اکٹھی آ گئیں۔ پیر کے دن وہ اسکول آئی تو ہتھیلیوں پر مہندی لگی تھی اور انگلیوں میں منگنی کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ثمینہ بولی، منگنی کی رسم تو انہوں نے زبردستی کر لی، مگر دیکھ لینا میں بھاگ جاؤں گی، مگر وجاہت سے شادی نہیں کروں گی۔ بھاگ کر آخر کہاں جاؤ گی؟ فلم انڈسٹری چلی جاؤں گی، کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گا مجھے پناہ دینے والا۔
तौबा करो, कैसी बातें करती हो बच्चों जैसी। मगर तुम मगर तुम तो हो ही बच्ची। मैंने उसे छेड़ा। कहने लगी, जी नहीं, मैं अब इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि बगैर सोचे समझे घर से निकल पड़ूँ। अब घर वाले कहते हैं कि इधर उधर की ना सोचो, बस पढ़ाई पे तवज्जो दो। कोई उनसे पूछे, जब आगे पढ़ाना नहीं तो फिर किस लिए पढ़ाई पे तवज्जो दूँ। अरे भाई, मैट्रिक का इम्तिहान तो देना है ना। इम्तिहान ही तो नहीं दे सकती। सालाना पेपरों से पहले शादी की तारीख रख दी है अब्बा ने। ये कैसे हो सकता है? यही तो हो रहा है। कहते हैं पेपर शादी के बाद भी दिए जा सकते हैं, जबकि ये नामुमकिन सी बात है। नामुमकिन तो नहीं, अगर शौहर और ससुराल वाले ताउन करने वाले हों। हाँ, ज़रा दुश्वार ज़रूर है। तभी तो कहती हूँ कि भाग जाऊँ। मैंने तसल्ली दी। हमदर्दी की तो मोटे मोटे चंद आंसू उसकी आंखों से बह निकले। तब मुझे वाकई उस पर तरस आया कि बेचारी क्या करे कि इंसान कब तक दिल पर जबर कर सकता है। मैंने दुआ की, खुदाया इसकी किस्मत अच्छी कर दे, मेरी दोस्त को सुखी कर दे। कुछ दिनों बाद उसने स्कूल आना छोड़ दिया तो परेशान होकर उसके घर गई। उससे पूछा, स्कूल आना क्यों छोड़ दिया? जब मेरी शादी ही होनी है तो क्यों आऊँ स्कूल? अच्छा, घर में बैठकर पढ़ाई करती हो। किस लिए पढ़ूँ और क्यों इम्तिहान की तैयारी करूँ जबकि इम्तिहान देना नहीं है? या अल्लाह, तो फिर सुकून से शादी करके घर बसा लो। मैं शादी नहीं कर रही। तो क्या करने का इरादा है? मुझे बताओ। बताती हूँ। उसने कुछ सोचते हुए दराज खोली और अखबार का एक सफ़ा निकाल कर दिखाया। ये देखो, इसमें इश्तिहार आया है। ये एक फ़िल्म कंपनी को नए चेहरों की ज़रूरत है। उफ़ मेरे खुदाया, उसने अपनी सी करने की ठान ली। मैंने अखबार का तराशा लेकर पढ़ा। खुदा जाने इसमें ऐसी क्या ख़ास बात थी, मुझे उससे उन्स हो गया। उसकी तूफ़ानी सोचें भी मुझे उससे दूर ना कर सकी। सोचा, आए काश उसके वालिदैन मैट्रिक के सालाना इम्तिहान तक सब्र कर लेते तो उसका दिल पढ़ाई से उचाट ना होता। लेकिन घर वालों को उसके एहसासात की परवाह न थी। वो अपनी सी करने पर तुले थे। उसके वालिद तो पहले ही यही चाहते थे कि वो स्कूल ना जाए। उन्होंने उसके घर बैठ जाने का कोई नोटिस ना लिया। उसके लिए शादी के जोड़े वगैरह सिल रहे थे, शादी की शॉपिंग हो रही थी और वो बेचैन सी फिर रही थी। एक दिन उसने मुझे अपनी छोटी बहन को बेच कर बुलवाया। मैं गई तो बोली, फिल्म कंपनी के इस दफ्तर का पता जानना है। कहाँ वाक़या है? जिन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया है। तुम मेरे साथ चलोगी? पता तो है, पता तो अखबार में लिखा है। चलो जाकर दफ्तर देख आते हैं। पागल हो गई हो? 15 दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुम फिल्म वालों को इंटरव्यू देने चली हो। कहने लगी, तुम साथ नहीं चलती तो ना सही, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वो मुझसे नाराज़ होगी, जाहिर है। मैं क्यों कर उसके साथ जा सकती थी। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। आखिरकार वो दिन आ पहुंचा जब उसे बाबुल के घर से रुखसत होना था। उसकी वालदा हमारे घर कार्ड देने आई। मेरा दिल धक से रह गया। समीना मुझसे नाराज़ है, कैसे उसका सामना कर पाऊंगी। मायों से एक रोज़ कबल उसके घर गई ताकि उसको मना लूँ। वो मुझे देखकर नाराज़गी का इजहार करने की बजाय खुश हो गई। बोली, जानती हो, मैं फिल्म कंपनी के दफ्तर गई थी। उन्होंने बताया है कि इस माह की 16 तारीख को इंटरव्यू है। कैसे गई तुम? मैंने हैरान होकर पूछा। दर्जी को शादी का जोड़ा देना था, अम्मी के साथ गई थी कि अपनी पसंद का लहंगा सिलवाऊंगी टेलर से। टेलर ने रसाले में लहंगे के डिज़ाइन दिखाए। मैंने अम्मी से कहा, इस पते पर एक सहेली का घर है, उसे कार्ड देना है। मैंने अखबार के इश्तिहार से कागज़ पे पता लिख लिया था। वो मुझे रिक्शे पे ले गई। मैंने अम्मी से कहा कि आप बिल्डिंग की सीढ़ियाँ ना चढ़ सकेंगी, आखिरी मंजिल पर घर है, आप रिक्शे में बैठी रहें, मैं कार्ड देकर अभी आती हूँ। वो रिक्शे में बैठी रही और मैं ऊपर चली गई। वहाँ 2 आदमी ऑफिस में मौजूद थे। इश्तिहार दिखाया। उन्होंने कहा, आप स्क्रीन टेस्ट होगा, 16 तारीख की शाम को आ जाइएगा। 16 को तुम्हारी रुखसती है। मैंने उसे याद दिलाया। रुखसती तो रात को होगी, शाम को ब्यूटी पार्लर नहीं जाना। तो क्या तुम्हारा वहाँ से जाने का इरादा है? उसने पहले ही वो कुछ कहती उसकी वालदा और कुछ रिश्तेदार लड़कियाँ आ गई। लड़कियां उसके पास बैठ गई। शाम हो रही थी। मैं घर आ गई। दिल में वसवसे लेकर दुआ करती रही, अल्लाह करे उसका दिमाग जगह पर रहे, कहीं कोई उल्टी सीधी हरकत न कर गुजरे, क्योंकि जोशीली समीना से सब कुछ क्यों करने की उम्मीद रखी जा सकती थी।
मारू की रस्म ख़त्म हो गई, खैरियत से गुजरी। फिर शादी का दिन आन पहुंचा। 4 बजे उसे ब्यूटी पार्लर जाना था। उसके साथ 2 बहनें गईं। मामू ने अपनी गाड़ी और ड्राइवर दे दिया था। ब्यूटी पार्लर जाकर मेकअप कराया और जोड़ा पहन लिया। बहनों से कहा, अम्मी के पास जाओ, उनसे कहो कि जेवर ले आएं। मैं जेवर यहीं से पहनकर चलूँगी। बहनों ने बहुत कहा, जेवर यहाँ लाने में ख़तरा है, एहतियात करनी चाहिए। बोली, अम्मी के साथ मामू आ जाएंगे, मगर यही लोग मुझे मुकम्मल तैयार करेंगे जिन्होंने मेरा मेकअप किया है। मजबूर होकर बहनें ड्राइवर के हमरा घर आ गई। माँ को बताया कि समीना ने जेवर लाने का कहा है। आप मामू जान के साथ चलिए और जेवर बालों और सर में लगाने का इसे ले चलिए, ऐसे वो बाल बनवाने की नहीं है। मजबूरन माँ ने सब काम छोड़ा, भाई को हमरा लिया और कुछ जेवर साथ लिया। जब ब्यूटी पार्लर आए, समीना को ना पाया। खुदा जाने कब वहाँ से निकल गई थी। ब्यूटी पार्लर वालों को भी पता ना चला। उसे वहाँ ना पाकर सब परेशान हो गए। वालदा रोने लगी। घर आकर समीना के वालिद को बताया, वो भी परेशान हो गए। मैं और अम्मी उनके घर बैठे थे। आंटी को मैंने अलहदा कमरे में ले गई और बताया कि आप फलां जगह जाएं, आज उसका इंटरव्यू होना था। वो धुन की पक्की वहाँ ना चली गई हो। उसकी वालदा ने कहा, हाँ बेटी, वो बिल्डिंग में मैंने देखी है। मुझे ले गई थी सहेली का कार्ड देने का कहकर। 10 मिनट से पहले वापस आ गई थी। उसने इश्तिहार पढ़ा था, पता मुझे याद था। कागज़ पर लिखकर आंटी को दे दिया। यूँ समीना के वालिद दफ्तर जा पहुँचे। वो वाकई वहाँ मौजूद थी। कुछ लड़कियाँ इंटरव्यू देने आई हुई थी। समीना और उसी लिबास में उनके दफ्तर में बैठी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। बाप को देखकर उसका रंग फक हो गया, मगर अंकल ने अक्लमंदी से काम लिया और कहा, बेटी घर चलो, इंटरव्यू बाद में दे देना। वादा करता हूँ कि तुम्हारा इंटरव्यू दिलवाने के लिए मैं खुद आऊँगा, लेकिन अभी मेरी इज्जत रख लो। अंकल ने फिल्म कंपनी के मैनेजर से बात की कि आज मेरी बच्ची की शादी है, आज इसका इंटरव्यू है, अभी इसे दूसरी तारीख का कह दीजिए, इसका निकाह होना है और सब लोग जमा है, मेरी इज्जत का सवाल है। बाप की इल्तिजा पर उस शख्स ने कहा, समीना बीबी, आप अपने वालिद के हमरा घर जाइए, हम आपका इंटरव्यू यकम को ले लेंगे। अभी इंटरव्यू 15 रोज़ तक जारी रहेंगे। आप पहले घर बसाइए, इंटरव्यू बाद में होता रहेगा। उसे मजबूरन वालिद के हमरा आना पड़ा। जीना उतरकर कार तक आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि ड्राइविंग सीट पर वजाहत मौजूद था। गोया वालिद ने उसको सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद समझा था, क्योंकि वो खुद ड्राइव नहीं कर सकते थे। बहरहाल निकाह हुआ और फिर रुखसती हो गई। शब उरूसी वजाहत ने पूछा, तुम क्यों ऐन वक्त पर चली गईं? वालिद का तो कुछ ख्याल किया होता। मैं कुछ करना चाहती हूँ वजाहत, मुझ में वो सलाहियत है, उसे मारकर ज़िंदा नहीं रह सकती। जब दफ्तर देखने गई तो वहाँ मौजूद कंपनी के मैनेजर ने कहा कि आप खूबसूरत और बासलाहियत हैं, आपकी कामयाबी के बहुत इम्कानात हैं। जब ब्यूटी पार्लर से तैयार हो चुकी और ख़ुद को आईने में देखा तो मुझे लगा उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अगर अब मौका गंवा दिया फिर कभी ना मिलेगा, इसलिए इंटरव्यू देने चली गई। किसी के साथ भागी तो नहीं हूँ, बस अपना आप मनवाना चाहती थी। वजाहत बहुत समझदार इंसान निकला, जिसे वो अहमक कहती थी। उसने बातों बातों में उसका दिल मुट्ठी में ले लिया। शकीन दहानी कराई कि जैसे ज़िंदगी वो चाहेगी बसर कर सकेगी। वो हरगिज़ इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा, वो आज़ादी के साथ जी सकती है। वजाहत का सलूक बाद में समीना के साथ इस कदर अच्छा रहा कि उसने वजाहत की कदर करनी शुरू कर दी। वही शख्स जिसे वो बुरा जानती थी, जिसके बारे में कहती थी कि मुझे इससे नफ़रत है, उससे मोहब्बत का रिश्ता उसवार कर लिया और वो वजाहत का वैसा ही ख्याल रखने लगी जैसा वो उसका ख्याल रखता था। जब मैंने समीना को इस कदर बदला हुआ पाया तो सुख का सांस लिया। मैंने कहा, समीना वाकई तुमने तो कमाल कर दिया। कहने लगी, मैंने नहीं, वजाहत ने किया है। तुमने देखा कि वो कितने बड़े दिल का मालिक है। वालिद ने जब परेशान होकर उसे बताया कि दुल्हन गायब है तो उसका दिल धक से रह गया था, क्योंकि किसी को मेरे शौक़ का इल्म और अंदाज़ा ना था। वालिदैन क़यास आराई से काम लिया कि किसी और को पसंद करती होगी, तभी ऐन शादी के रोज़ उसके साथ चली गई। लेकिन वजाहत ने वालिद को हौसला दिया और कहा, अंकल, आपकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है, किसी को ख़बर ना कीजिए, मेरे वालिदैन को भी नहीं। पहले उस पते पर चलिए और जो आंटी ने दिया है, बाद में सोचते हैं कि क्या करना है। अंकल ने कहा था,
मिल जाए समीना घर लाकर उसका गला न दबा दिया तो कहना। वजाहत ने उन्हें कसम दी थी कि आप ऐसा नहीं करेंगे, वो जैसी भी है मेरी अमानत है, मुझे हर हाल में मंजूर है। अगर मेरे साथ शादी ना करना चाहेगी तब भी मैं समीना का साथ दूंगा। शादी में पसंदीदगी और रजामंदी उसका हक है। तुमने बचपना बहुत है, अभी तुमने दुनिया को नहीं समझा। तुम्हें खबर नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में जाना और कामयाब हो जाना बच्चों का खेल नहीं है। वहाँ कामयाबी के रास्तों पर जो कांटे बिछे हैं उनका दर्द उन्हीं को मालूम है जिन्होंने ये दर्द सहा है। इस वक्त तो मैंने वजाहत की बात ना समझी, मगर अब समझती हूँ। वजाहत एक अच्छे दिल और अच्छे किरदार के सामने समीना के शौक़ ने हथियार डाल दिए। सारे ज़माने को पसे पुष्ट डाल कर वो इसी की हो रही। सच है, आदमी की परख उस वक्त होती है जब उससे वास्ता पड़ता है। कभी कभी हमें कोई बुरा लगता है, लेकिन वो बुरा होता नहीं बल्कि हज़ारों से अच्छा होता है। समीना भी जिस शख्स को बुरा जानती थी वो बिला वजह उससे नफ़रत करती थी। आज उसके बगैर एक मिनट जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, क्योंकि वजाहत जो शक्ल सूरत से सीधा साधा दिखाई देता था वो अक्लमंदी और आला ज़र्फ़ी की मिसाल था, बल्कि लाखों में एक था। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।